या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम्। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिकम वाचिकम आहार सात्विकम, यही तो है अपना वसुधैव कुटुम्बकम। Actors. The previous play has ended. We have now 15 minutes before we go on stage. I want you to go through your theatre exercises and practice. And we are using a new technique, and there should be no errors. Assistant Samratji, Yes, Dada. can you please take the class? Sure, Dada. Thank you. Dada, some research scholars have come and they have some questions about your book. Oh, good. Call them. Do I call them in? Yeah, please call them, but tell them I have exactly 10 minutes. Sure, Dada. Thank you. Please, guys, have to go there. Come, but Dada has only 10 minutes. Please have a seat. Dada, here are the scholars. Thank you. And you please. Yeah. Pranam, sir. Pranam. So welcome, friends. So what brings you to the theatre? It is an honor to meet you, sir. हम सब नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, तब से हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठे हैं। हम उन्हीं के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछें। निसंकोच पूछें. By all means, ask away. How did you think of the concept of नाट्य शास्त्र and what is its purpose? Nice. That's a very good question. But because the Natya Shastra is not the life, it's not a subject of theatre, it has life in itself. You see, over the millennia, human beings have become overwhelmed with desire and greed, and which led inevitably to corruption and conflict. तब इंद्र जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया. तब उन्होंने कहा कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसके साथ हम देखना और सुनना सीख सके. तब ब्रह्मा जी ने, जो हमारे जगत पिता है, उन्होंने एक वेद की उत्पत्ति की और वो वेद कहलाया आपका नाट्य शास्त्र. लेकिन सर, वेद तो ज्ञान के भंडार है, इसमें जगत का रहस्य छिपा है. If all knowledge is contained in the 4 Vedas, what is the need for the 5th Veda? So that the knowledge is accessible to all. सामान्य जन को नाट्य के माध्यम से धर्म
और शिक्षा के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी ने 4 वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेंस ऑफ ऑल 4 Vedas. What is the essence of the 4 Vedas, sir? You know these dialogues you're hearing, Brahma ji took their form from the Rig Veda, and the melody you are hearing takes its foundation from the Sam Veda. And theatrical expressions have come from which Veda, Samrat? Theatrical expressions have come from the Yajur Veda, sir. And emotions have come from the Atharva Veda. So, Natya Shastra is a combination of different elements of all 4 Vedas. तो सर क्या नाटक केवल कुछ पद के लोग के लिए बनाए गए हैं? दादा, हाँ। यही प्रश्न दादा बोलते ब्रह्मा जी से पूछा था। हाँ, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उनको उत्तर दिया था कि नाटक दानवों, देवताओं और मनुष्यों के शुभ अशुभ कामों को दिखाने का एक कार्य है या एक माध्यम है। तो इस शास्त्र में तो त्रिलोकीय का अनुकीर्तन है। नाटक दुख से, थकावट से, शोक से लोगों को बाहर निकालने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। इसमें सारे रस, सारे भाव, शिल्प कलाओं तथा इसमें कार्यों का सन्निवेश है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य वेद में ना हो। Absolutely. समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी भी। सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ छात्रों, नाट्य को समस्त कलाओं का उद्गम भी कह सकते हैं। It's combined by all the arts. नाट्य कला तो अद्भुत कला है, उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। बिल्कुल सही कहा। Then why doesn't society take the performing arts seriously? Why treat them as unnecessary? We are artists, not the policy makers. The policy makers will have to consider us, our art, our work, and give us the opportunity and means to experiment and present our work. नाटक केवल कला नहीं है, ये समाज का एक दर्पण है। अकाल, तुम बताओ, नाटक क्या है? समाज का क्या है नाटक? थिएटर इज अ मिरर टू सोसाइटी, सर। वेरी गुड। और हाँ, ये मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का एक सबसे बड़ा साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर मानवता को दर्पण करता है, मानवता की बात करता है ना दादा? हाँ राशि, तुमने सही कहा। रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दिखाने का एक, या समता को समाज से दूर करने का, या समाज में अच्छे से बर्ताव करने का एक साधन है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। Society without the arts is no society at all. This is precisely with this expectation that the authorities should give us our due. That I have called the Natya Shastra, the Pancham Ved. पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। Dada, it is nearly time for us to go on stage. And we're done with our theater exercises. तो आप सभी लोग, मेरे रंगकर्मी के कुछ छात्रों ने आपके लिए एक अच्छी प्रस्तुति तैयार की है। मैं चाहता हूँ कि आप चलें और इस नाटक का आनंद लीजिए। तो shall we go? Sure. Please. वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले विमल, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, व दुर्जनों का नाश हो। उदार चरित्राणाम वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्व बंधु भावनाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। योग कर्मशु कौशलम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वसुधैव कुटुम्बकम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे